سندھ حکومت کا میر رضا کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن نجار اور میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب میر رضا علی خان کے والدین سے ملاقات میں کیس کی پیشرفت اور تحقیقات سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ضیاء الحسن نجار نے کہا کہ میر رضا کیس سے متعلق وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ میٹنگ کی، کیس کی جوڈیشل انکوائری کرانے کا فیصلہ کیا گیا، تحقیقاتی ٹیم بھی تبدیل کر دی ہے۔ فیملی کو کہا ہے کہ جو بھی پولیس افسر کہیں گے انہی کو ٹیم میں شامل کریں گے۔ میر رضا علی خان کے اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا، انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے، کسی ذمہ دار سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ میر رضا علی کیس کی نئی تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ 5 رکنی نئی تحقیقاتی کمیٹی کی سربراہی DIG عامر فاروقی کریں گے۔ کمیٹی کے سیکریٹری SSP RRF علی رضا ہوں گے، جبکہ ٹیم ممبران میں SP انویسٹیگیشن کرنگی کیس خان، SP انویسٹیگیشن سینٹر انم تحمل اور SIO زمان ٹاؤن چودھری انصر ٹیم میں شامل۔ تحقیقاتی ٹیم واقعے کی تمام پہلوؤں سے تفتیش کرے گی۔ میر رضا علی کیس میں اہم پیش رفت۔ میر رضا علی کیس کی شرٹ پر مبینہ طور پر تیزاب کے نشانات ہونے کا انکشاف۔ ذرائع کے مطابق میر رضا علی کی شرٹ کے سامنے کے حصے پر تیزاب کے نشانات پائے گئے۔ میڈیکو لیگل افسر ڈاکٹر اسامہ کی جانب سے سیمپلز بھیجے گئے تھے، جن میں میر رضا علی کی شرٹ بھی بھیجی گئی تھی۔ کراچی یونیورسٹی لیب میں اس کا فرانسک کیا جانا تھا۔ شرٹ پر بیلسٹک اسپارک کا تجزیہ ہونا باقی ہے۔ میر رضا علی کیس ایڈیشنل IG کراچی آزاد خان کے احکامات پر تھانہ فیروز آباد میں درج مقدمے کی تفتیش فوری طور پر منتقل کر دی گئی۔ مقدمے کی تفتیش IG سندھ کی جانب سے تشکیل دی گئی، تحقیقاتی ٹیم کی نگرانی میں مکمل کی جائے گی۔ نئے صوبوں کے لیے اٹھنے والی ہر تحریک کا حصہ بنیں گے۔ MKM رہنما سید مصطفیٰ کمال کا اعلان۔ سویجانی ٹاؤن میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کو چلانے اور بچانے کے لیے نئے انتظامی یونٹس بتانا لازم اور ملزوم ہے۔ جب بھی عوام کو حقوق ملنے کی بات ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی ناراض ہو جاتی ہے۔ پاکستان کی خاطر ہمیں کسی کی ناراضگی کو نظر انداز کرنا ہوگا۔ اب MKM انتظامی یونٹس کے قیام کی تحریک کا ہر اول دستہ بنے گی۔ وفاق سے صوبوں کو اربوں روپے ملتے ہیں مگر اضلاع تک نہیں پہنچتے۔ آج ملک 4 وزرائے اعلیٰ چلا رہے ہیں۔ پورے ملک میں 33 صوبے ہونے چاہیے۔ اسلام آباد کو بھی صوبے کا درجہ دیا جائے۔ رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت نے بھی ملک میں نئے صوبے بننے کی حمایت کر دی ہے۔ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وسائل کی مساوی تقسیم اور بہتر حکمرانی کے لیے چھوٹے انتظامی صوبے ضروری ہیں۔ صوبے بنیں گے تو مقامی لوگ حکمرانی کریں گے۔ چھوٹے انتظامی صوبوں کی تحریک کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ طاقتور لوگ پاکستان کو جو کا تو رکھنا چاہتے ہیں۔ چھوٹے کام کے لیے پشاور یا لاہور بھاگنا پڑتا ہے، دن سفر میں کٹ جاتا ہے، جبکہ ترقی لاہور یا پشاور میں ہوگی تو باقی علاقوں میں دہشت گردی ملے گی۔ سیاسی پارٹیوں کے لوگوں کا فرض ہے کہ صوبے کے لیے کام کریں۔ مکہ معاہدہ مکمل طور پر دفاعی نوعیت کا حامل ہے، کسی ملک کے خلاف کارروائی مقصد نہیں، امن و استحکام کو مضبوط بنانا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ مکہ معاہدہ تینوں ممالک کے برادرانہ تعلقات کا عکاس ہے، یہ برسوں کی مشاورت اور رابطہ کاری کا نتیجہ ہے۔ معاہدے کا مقصد امن و سلامتی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون مزید مضبوط بنانا ہے۔ معاہدہ خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کو فروغ دے گا۔ پاکستان خطے میں پائیدار امن و تعاون کا خواہاں ہے، تنازعات کے پرامن حل اور عوام کے محفوظ مستقبل کے لیے پرعزم ہے۔ مکہ باہمی امن معاہدہ امن، سلامتی اور استحکام کی جانب ایک تاریخی سنگ میل۔ پاکستان کے عوام کی جانب سے مکہ باہمی امن معاہدے کا بھرپور خیر مقدم۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا مکہ باہمی امن معاہدہ خطے میں امن و استحکام کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ مکہ باہمی دفاعی معاہدہ کابینہ اراکین اور پارلیمنٹیرینز کا خیر مقدم، تاریخی پیش رفت قرار۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان
मक्का मुकरमा में होने वाले बाहमी दिफाई मुआहदे पर काबीना अरकान और पार्लियामेंटेरियंस ने पूरी कौम को मुबारकबाद देते हुए इसे अमन, सलामती, इस्तेहकाम और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद की जानिब तारीखी संग मील करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत और काविशों को सराहते हुए कहा कि इस तारीखी मुआहदे से पाकिस्तान का वक़ार बुलंद, बरादर ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत और मुस्लिम उम्मा को नई उम्मीद मिली है। मुआहदा तीनों ममालिक के दिफा, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया का मक्का बाहमी दिफाई मुआहदे के बाद खुसूसी नगमा जारी। तीनों ममालिक के तारीखी दिफाई मुआहदे की खुशी में जारी किए गए इस नगमे में तीनों ममालिक के बरादराना ताल्लुक को उजागर किया गया है। नगमे में हरमैन शरीफैन की हिफाजत और खिदमत को एक मुश्तरका मुक़द्दस जिम्मेदारी के तौर पर पेश किया गया। पाकिस्तानी सरजमीन पर मौजूद सिपाहियों को इश्क़ हरम और मुक़द्दस मकामात से वाबस्तगी की रोशन अलामत के तौर पर बयान किया गया। नगमे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को मुसलमानों की ईमान और शनाख्त का बुनियादी हिस्सा करार दिया गया। पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे की खुशी में मुल्क भर की एयरपोर्ट्स और पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के हेड क्वार्टर्स सब्ज और सुर्ख रोशनियों से जगमगा उठे। तारीखी मुआहदे पर कौमी फ़ख्र का इजहार किया गया, जबकि PAA हेड क्वार्टर्स को सब्ज और सुर्ख बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स को खुसूसी तौर पर सब्ज और सुर्ख रोशनियों से मुनव्वर किया गया। तारीखी मक्का दिफाई मुआहदे के मौके पर किया जाने वाला ये चरागा कौमी सतह पर खुशी, इत्तेहाद और पाकिस्तान की अहम दिफाई शराकत दारों के साथ ताउन की अहमियत को उजागर करता है। वज़ीरत इत्तलात और नशरियात ने अफगान तालिबान की जानिब से पाकिस्तान से अफगानिस्तान हथियारों की स्मगलिंग के दावे को मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान से अफगानिस्तान हथियारों की स्मगलिंग का दावा बेबुनियाद है। ये दावा मुस्लिमा हक़ाइक़ के मनाफी और असल मसले से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अफगानिस्तान पहले ही अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज के छोड़े गए $702 अरब मालियत के हथियार रखता है। अफगानिस्तान में सोवियत दौर के हथियारों के बड़े ज़खायर भी मौजूद हैं। इन हथियारों को पाकिस्तान से जोड़ना असल मसले से तवज्जो हटाने के मुतरादिफ है, जबकि अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द ग्रोहों को पनाह, सहूलत और कार्रवाई की आज़ादी है। ये ग्रोह पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी और कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद से टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख़याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान तय पाने वाले मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर गुफ्तगू की। इसहाक़ डार ने कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा को मुआहदे से मुतालिक आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का अमरीका और ईरान कशीदगी में उभरती हुई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। इसहाक़ डार ने मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम की सूरत हाल पर रोशनी डाली। ईरान तमाम तर दबाव के बावजूद मुज़ाहमत के लिए पूरी तरह तैयार है। मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी जारी रही तो अमरीका से मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का दो टोक ऐलान, कहा कि अमरीका और ईरान में बातचीत नहीं हो रही, सालिसों के जरिए पैगामात के तबादले हो रहे हैं। ईरान और ओमान के दरमियान अपना हुर्मुज़ मुआहदा हतमी मराहिल में है। ईरान ओमान के दरमियान मुआहदे से अपना हुर्मुज़ को फौरी नहीं खोला जाएगा। हम अपने शोहदा के खून नाहक को भूलने या नज़रअंदाज नहीं होने देंगे। हमारे अजीम शोहदा का खून बहाने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की एक नई वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुश्तबा खामनाई वीडियो में कई अफराद के साथ बैठे बातचीत करते नजर आ रहे हैं। मुश्तबा खामनाई की वीडियो ईरानी खबर एजेंसी ने जारी की। ईरानी खबर एजेंसी ने मुश्तबा खामनाई की वीडियो रिकॉर्डिंग का मुकाम और वक्त नहीं बताया। वीडियो में मौजूद दीगर लोगों की तफसीलात भी नहीं बताई गई। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ
15 खारिज जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने मस्तूम, गोलान, वाशक, अवरान, सिब्बी, खुजदार, हन्नाई और नौशकी में खारिज के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयाँ की। खारिज के कब्जे से बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाइयों के बायस खारिज के नेटवर्क को शदीद नुकसान पहुँचा है और इनकी नकलो हरकत महदूद कर दी गई। यौम आज़ादी के मौके पर ISPR ने बलोची ज़बान में खूबसूरत नगमा पाक ए वतन रिलीज कर दिया। यौम आज़ादी के मौके पर वतन से सच्ची मोहब्बत का इजहार करते हुए बलोच गुलकार अख्तर चनाल ने अपने मखसूस रिवायती अंदाज और जोशीले बलोची बोलों के जरिए पाक सरजमीन से वालिहाना इश्क की अक्कासी की है, जबकि मिली नगमे में इस अज़म का इजहार किया कि हमारा प्यारा पाकिस्तान सिर्फ एक जोग्राफिया नहीं बल्कि हमारी पहचान है, जिसके लिए जान भी कुर्बान की है। मिली नगमा मैं पाक वतन से मोहब्बत की ये गूंज मुल्क के कोने कोने में इत्तेहाद, यकजहती और भाईचारे का रोशन पैगाम आम करती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यौम आज़ादी पर बलूची ज़बान में मिली नगमे की वीडियो शेयर कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म की बलूचिस्तान से पेश किए गए हुब्बुल वतनी नगमे पर फनकारों को खराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म ने लिखा कि बलूचिस्तान से खूबसूरत और हुब्बुल वतनी के इस नगमे से मेरा दिल फ़ख्र से सरशार है। मिली नगमे में वतन से मोहब्बत के जज्बे और रूह को खूबसूरती से उजागर किया गया। ISPR समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 कामयाबी से जारी। साबिक मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ की तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त। साबिक मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कौमी सलामती, मईशत और नौजवानों के किरदार पर तफसीली का इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तरक्की याफ्ता मुआशरों में मुश्तरका अंसर नौजवान नस्ल का मुस्बत किरदार, बुलंद हौसला और मौसर शमूलियत है। जामे कौमी सलामती का हकीकी तस्वुर हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त, सलामती और खुशहाली को यकीनी बनाने से वाबस्ता है। पाकिस्तान का रोशन मुस्तक़बिल नौजवानों की सोच, काबिलियत, मेहनत और बुलंद अज़म से ही मुमकिन है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने अपनी और अपने बेटे के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर झूठा, बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी मवाद शेयर करने के मामले पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NCCIS से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में 4 फेसबुक अकाउंट्स और पेजेस की निशानदेही करते हुए इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इस्तदा की है, जबकि सोशल मीडिया पर यह इल्ज़ाम आयद किया कि मीर रजा पर जिस गेस्ट हाउस में तशद्दुद किया गया वो शर्जील इनाम मेमन की मिल्कियत है। शर्जील इनाम मेमन ने इस इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि गेस्ट हाउस की मिल्कियत और इनके बेटे रावल मेमन के लंदन रवाना होने से मुतालिक गर्दिश करने वाले दावे भी हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। मीर रजा केस को दूसरा रुख देना चाहते हैं, जबकि सरासर नाइंसाफ़ी लगता है कि तफ्तीश में कोई गलती हुई है। तहकीकात का रुख मोड़ा गया। MQM मजम्मत करती रही। रहनुमा MQM फारूक सत्तार कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि नौजवान इस शहर में इनकलाब ला रहे हैं। नौजवानों का एक काफिला मीर रजा को इंसाफ दिलाने के लिए बन रहा है। इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए और बनकर रहेंगे। मुल्क में वडेरों और जागीरदारों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में नए इंतजामी यूनिट्स और सूबे नागुज़ीर हो चुके हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का चैलेंज आज भी सामने खड़ा है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक कहते हैं कि पिछले 2-3 सालों में वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्किल फैसले लिए। आसमान को छूती तेल की कीमतों को रोकने की भरपूर कोशिश की गई। वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल नायब वज़ीर-ए-आज़म की काविशों से मक्का दिफाई मुआहिदा हुआ। हम सबको मक्का दिफाई मुश्तरका मुआहिदे पर फ़ख्र है। अगली मंजिल मुआशी मैदान में हासिल करनी है। जमात इस्लामी का 16 अगस्त को चारों सूबों में धरनों का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि KP और सिंध में गवर्नर हाउस के सामने धरना देंगे। हमारा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं। पेट्रोल 225 रुपये और अशिया सस्ती की जाएं। पार्टी मुफाद में नहीं, अवाम मुफाद के लिए सब हमारा साथ दें। फॉर्म 47 की हुकूमत ने अवाम का जीना हराम किया है। सड़क बंद होने से नुकसान नहीं हुआ तो हुकूमत को एतराज़ क्यों? अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे।
कराची के मुकामी होटल में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार 37वीं सालाना महफिल नात का इनेकाद किया गया। मुल्क के नामवर नाखवा ने बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश किए। वहीद जफर कासमी, सिद्दीक इस्माइल, महमूद उल हसन अशरफी, शकील मदनी, असद अयूब, जुहेब अशरफी, अब्दुल रऊफ हसन खुर्शीद और फैसल नक्शबंदी समेत दीगर मारूफ नातख्वा हजरात ने अपने मखसूस अंदाज में नातिया कलाम पेश किया। बाबरकत महफिल में गवर्नर सिंध निहाल हाशमी समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता मारूफ शख्सियात ने शिरकत की है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने लांडी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा कि शहर ठीक सिंध में आगे बढ़ा है, प्रोपेगेंडा बंद करो। चाइना कटिंग करने वाले कहते हैं कि शहर को हम ठीक करेंगे। सूबों से मुतालिक जो तरीका आइन में है इस पर अमल करें। शोषण छोड़ने से मसाइल हल नहीं होंगे। निज़ाम को चलाने वाले ठीक नहीं होंगे तो कितना ही अच्छा निज़ाम नहीं चलेगा। कराची में पुलिस के दावे महज दावे साबित हुए। माह जुलाई में भी शहरी लुटते और मरते रहे। CPLC ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। कराची में माह जुलाई के दौरान 40 शहरी कत्ल हुए। बत्ताखोरी के 18 वाक़यात सामने आ गए हैं। जुलाई में शहर कायद से 2648 मोटरसाइकिलें चोरी हुई, 492 मोटरसाइकिलें छीन ली गईं, जबकि जुलाई में 1846 मोबाइल फोन शहरियों से छीन लिए गए। 110 कारें चोरी, 12 कारें असलहे के जोर पर छीनी गईं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला अपर चित्राल में तूफानी बारिशें, शदीद बारिशों के नतीजे में सड़कें, पुल और मकानात मुतासिर। सड़कों, गलियों, ज़रई अराजी और घरों को शदीद नुकसान पहुंचा है। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी और रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। मुसलसल बारिश के दौरान फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के जवानों ने फौरी तौर पर मुतासरा इलाकों में पहुंचकर इमदादी सरगर्मियों का आगाज किया और मुश्किल में घिरे शहरियों को जरूरी मुआवनत फराहम की है। सैलाबी पानी में फंसे मुतासरीन को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। समुद्री तूफान जापान के बाद चीन के मशरकी साहिलों से टकरा गया। जापान और चीन में समुद्री तूफान डॉल्फिन से तबाही। शंघाई के 2 हवाई अड्डों पर 1384 परवाजें मंसूख कर दी गईं। चीन की यांगशान बंदरगाह पर 500 से जायद कश्तियों को समंदर में जाने से रोक दिया गया। चीन के कई शहरों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशें। चीनी सूबे जीजोंग के मुख्तलिफ इलाकों में 500 मिलीमीटर बारिश की पेशगोई की गई है। और पाकिस्तान के नौजवान स्क्वाश खिलाड़ी उमैर आरिफ ने हांगकांग जूनियर स्क्वाश ओपन का अंडर 17 टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में उमैर आरिफ ने इंग्लैंड के ल्यूक मैकब्राइट को सख्त मुकाबले के बाद 302 से शिकस्त दे दी है। उमैर आरिफ वर्ल्ड जूनियर और एशियन जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुके हैं।